fact, Nelson. There is no comment on chair. Otherwise, I would have made very serious observation because we are country. So I should respect the feeling of my colleague, Professor Saji, who is chairing this evening. My other colleague, Professor Rajesh Paswanji, who has already finished his deliberation. Dr. Kamaljeet Singh ji, I am privileged enough to hear him and learn about Guru Ravidas ji and his contribution made to the society. Dr. Balbir Madhuri ji, we are associated with more than 2 decades. As an administrative officer in Ministry of Information and Broadcasting, and after retirement he is still contributing to the society. And my colleague Dr. Kumar Khanji, who has already been giving his thought whenever you have invited our national and international forum. And this is very difficult task for me to wind up my deliberation on Guruji in given time frame. But each and every word, if you read what I am trying to understand fully, Ravidas, one can complete PhD on each and every line. And the very negative connotation has been made about Guru Ravidas ji is his personality has been reduced as a only religious preacher. इतना रिड्यूस करके देखा गया जैसे लग रहा है कि बस वही पूजा पाठ करने वाले था. But dear friend, let me at the outset, let me congratulate my student and UDS Central Committee member who has organized this beautiful program. Begum, let me start from Begum. And when I am referring to this entire deliberation, debate on Guru Ravidas ji, I consider him and what I understood about Guruji. He is in fact, greatest human right defender. Number one. Number two, he was a freedom fighter. First freedom fighter in this country, 5 states. And third, he had a vision what we have enshrined in our constitution. All three dimensions, if we study carefully, how he was, pursuing entire good, irrespective of other duties and responsibilities. Yes, he worked tirelessly to make an equal society, to uplift the society. Number one, contribution. Number two, we have enough knowledge about सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा. हम लोग सभी लोग जानते हैं. What is the difference between saguna and nirguna? And Guruji was the person who has given an alternative to everything. It is not like this caste system was it started from today only. And when I am referring to Guruji, so he has given an alternative, and I will come a little later what we are discussing. And identity building also. Just to take, I am going to name, in fact, entire family of Guruji. In fact, great-grandfather, great-grandmother, in fact, Kalu Ramji and Srimati Lakshmati Devi ji, great-grandfather, great-grandmother, and then grandfather Harinand ji and grandmother
Srimati Chaturka. So they had a great grandfather, grandmother, and mother Raghuji, alias he was called by other names Santokh Das, and mother Srimati Karmani. Let me just give one example from the childhood what he faced. And in this locality, Sri Govardhanpur locality, every day women used to come and complain with his mother, Guruji's mother, कि आपका बच्चा हमारे बच्चों को खराब कर, वो कहता है कि बाहर किसी को मत ढूंढो, ईश्वर बाहर मत ढूंढो, अपने दिल में ढूंढने की कोशिश करो. Try to find out God within yourself. It means कि आज की तरह नहीं है टेम्पल एंट्री शुरू करो. गुरुजी का काम टेम्पल एंट्री वाज नहीं. मंदिर चलो, क्यों मंदिर चलो भाई? गुरुजी हैज गिवन एन अल्टरनेटिव. ये मंदिर मत चलो, अपने अंदर देखो. गुरुजी कहते हैं कि अब मंदिर में इसी के अंदर है सब कुछ, और इसी के अंदर ढूंढने की जरूरत है. और उनकी माता कर्मा देवी सुनती थी इस बात को और कहती थी कि मेरा बेटा जो कर रहा वो ठीक कर रहा. तो इट वॉज नॉट अ कॉल ओनली फॉर a specific community, but it was a call for an entire untouchable community, those who are deprived by the Hindu society or Hindu religion. एक आइडेंटिटी बिल्डिंग का था. अब आ जाइए दूसरा एस्पेक्ट जो है गुरुजी का. गुरुजी का दूसरा जो था, he was not from a very poor family. He was from a middle class, if I can say. And many researchers have proved that he was from a well family, and that to his father developed this leather in the form of leather industry. Lekin see the dedication of Guruji. He denounced everything. और फिर वो मनचंगा कठौती वाला तो सब कहानी जो है आप लोग जानते हैं, नॉट गोइंग टू. लेकिन जो उस तरह की चीजें जो थी, जैसे आप बनारस से देख लीजिए, चौरी चौरा से देख लीजिए, लेदर इंडस्ट्री वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इवन बिफोर द ब्रिटिश. एंड हाउ लेदर इंडस्ट्री इज डिसमेंटल्ड एंड हाउ इट ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बाटा और जितने भी वुडलैंड जितने भी आज. So that was a flourishing industry. It was the main source of livelihood to the community. So ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. When I'm referring about his contribution, बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँगा गुरुजी के बारे में. That is a very complicated issue for me. In fact, I'm not able to put you in order. भारत के संविधान में समता शब्द जोड़ा गया. समता, स्वतंत्रता, बंधु, यही सब है ना. तो मुझे लगा कि जो हम लोग बेगमपुरा का कंसेप्ट जो हम देख रहे हैं, बेगमपुरा यानी लैंड विद सॉरो, इसमें तो समता भी हो गई, समानता भी हो गई, बंधुत्व भी हो गई. 14th century के एंड में this was the big vision of Guruji, Guru Ravidas. जब वो इस बात को कहते हैं कि बेगमपुरा कैसा होना चाहिए, वहां कास्टलेस भी होना चाहिए, स्टेटलेस भी होना चाहिए, यानी इंटायर बेस्ड ऑन इंटायर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी को बात करते हैं, जो संविधान में बाद में आके कभी जो है आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, धर्म के नाम पर जो कहते हैं आर्टिकल जो 25 हो गया. ये तो 14वीं शताब्दी के है. अब जब मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी,
यह इतिहासकारों के ऊपर है कि आप अपनी स्वतंत्रता कब से शुरू करते हैं गिनना। यह आपके ऊपर। क्यों? 1857 से लेकर के और क्या क्या आप शुरू करते, तो वहीं से शुरू हुआ स्वतंत्रता आंदोलन। मेडिवल पीरियड में आपके स्वतंत्रता सेनानी लोग काम है। या मैं तो कहूंगा, दिस माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग एंड वन कैन क्वेश्चन, कि मुझे तो लगता है कि इट इज द सोसाइटी, अनटचेबल सोसाइटी, हु हैड अ मल्टी डायमेंशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, protecting his own communities, bringing them up to the level of the other humanity, protecting to the nation. अब थे गुरु जी सिकंदर बंदर के समय में सर क्या वो कौन सा पीरियड? सल्तनत पीरियड था। और आप लोग सुने होंगे रानी झाली का भी, मीराबाई का भी नाम आपने सुना, सबका सुना होगा। ये तो सगुण भक्ति वाले थे सब लोग ना। माय ब्रदर राजेश जी has already explained everything in detail. Or why they were influenced by Guru Ravidas? These are some of the basic questions. मैं जब बार बार कहता हूं कि सती प्रथा का जो अंत हुआ, उस समय गुरु जी ने बड़ी एक लंबी एक उसके लिए संघर्ष गुरु जी ने किया। सती सिस्टम, एबॉलिश सती सिस्टम। उसके बाद अब आप आइए, एंड I can say he might have achieved his success to certain level, certain point, but not completely eradicated the sati system, because the way Hindu order, Hindu system was prevailing in the society. अब आ जाइए 1556 के आसपास सती प्रथा अगेन, कौन एम्परर था? अशोक was the emperor. This what is called Lord, there is Akbar. अकबर अगेन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन सती सिस्टम। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं सर, कि अगर पत्नी के मरने से पति को स्वर्ग मिलता है, तो पत्नी जिसकी पहले मर गई, तो पत्नी के साथ पति को भी मरना चाहिए। भाई उस पत्नी को भी तो स्वर्ग चाहिए, हिंदू धर्म की फिलॉसफी में क्या है। तो बहुत सारे डिबेट होती है, और फर्स्ट पर्सन वाज गुरु रविदास जी, हु led the campaign against this sati system. Next अकबर, अदर लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1800 और 1929 2829 में सर सती सिस्टम उसके बाद भी चला है, राजस्थान में भी हुआ है। मैं बार बार इस चीज को जब आप लोगों से बात करता हूं, तो कभी कभी मैं भी थोड़ा सा नर्वस भी होता हूं, डिसअपॉइंटेड भी होता हूं, कि कैसे इस चीज को हम लोग कैसे इस चीज का एक हम रिस्पॉन्ड करें, और हाउ टू मेक अ कास्टलेस सोसाइटी। आई मीन अनकंफर्टेबल। और यहाँ एक रेफरेंस को मैं जोड़ता हूं कि जब मान्यवर कांशी राम शुरू के दिनों में जो अपने मूवमेंट, सोशल मूवमेंट चल रहा था TS4 के, तो वो कास्ट के एलिमिनेशन पे काफी समय लंबा एक पीरियड उन्होंने दिया, और फिर उन्होंने कहा जातियां तो खत्म नहीं की जा सकती, खत्म ही नहीं की जा सकती। जब जाति खत्म नहीं हो, देन ही चेंज हिज स्ट्रेटजी कि जाति जोड़ो। लेट अस मेक आवर पीपल economically powerful, let us our people control the power, and then only when they become powerful, certainly caste system will automatically reduce. बड़े लोगों के यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, गरीबों के लिए बोले, मेरे यहाँ कोई आके चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं। तो वो है एक कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। और जब इस तरह की चीजें, मैं सर ने आपने कहा ही है कि बेगमपुरा शहर को ना हुए, उसका मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की जितना
मैं समझ पाया हूँ, उतना मैं इस चीज को अपने हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो उस समय उन्होंने गुरु जी ने कहा था उसके हिसाब से मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, गुरु जी ने रिलीजन को भी एक अल्टरनेटिव अपना दिया। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट और भी इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी थे ये इनके सगुण भक्ति वाले में या निर्गुण भक्ति जो भी इनकी रही है, जिसमें ये लोग चाहे कोई कृष्ण की पूजा कर रहा हूं, चाहे शिव की पूजा कर रहा हूं, चाहे किसी की पूजा कर, और फ्रॉम द टाइम दिस काइंड ऑफ ऑफरिंग स्टार्टेड, caste system become a rigid and it became deep rooted in the society. और जिसमें जब से ये भक्ति मूवमेंट का जिसको हम लोग कहते हैं, और इसमें जो सगुण भक्ति में it was completely a dominance of the Brahmins, हिंदुओं का डोमिनेंस पूरी तरह से, and Guruji completely rejected the domination of the Hindus or the Brahmins. निर्गुण भक्ति, इस निर्गुण भक्ति शाखा में रिजेक्ट, और उनके रिचुअल्स को भी उन्होंने रिजेक्ट किया। अब मैं इसको थोड़ा सा और पीछे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलीजन में इनफैक्ट मैं देख रहा था कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो ये एक धर्म एक परंपरा है। मुझे तो लगता है कि इंटेलेक्चुअल्स आर वीक इन एकेडमिक, वी शुड वर्क ऑन इट वेरी सीरियसली। दिस नॉट अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। सभी लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब मैं इसको कहता हूं तो इट इज रिलेटेड टू, गुरु जी ने भी कहीं कहा, तो चले कि हम भी ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी ढूंढिए, कि इंडस वैली से बाद से ही, और उसके बाद चाहे वो नंद वासा हो, चाहे वो क्या बोलते हैं समकिसा हो, किसा समकिसा हो, चाहे मखली घोषाल हो, और मखली घोषाल की इंटायर एक्सरसाइज को किसी को कोई कहता है मखली घोषाल कौन से थे, कोई स्टडी करता है जो आजीवक के तौर में डिफरेंट नेम रहे होंगे, लेकिन when you study all those religion, then you will get a clear cut picture that they all those people, social reformer, rejected this ideal worship जब से भी शुरू हुई होगी। और उसके बाद फिर जितने भी इस तरह के लोग आए हैं मुगल पीरियड में, ये लोग रहे, चाहे फिर क्या नाम है मखली घोषाल से लेकर के ऊपर जो मैं बोल रहा था, उसके बाद आ जाइए, उससे पहले भी रहे हैं, चाहे वो अशोका रहे हो, चाहे बिंदुसार रहे हो, चाहे उनकी वाइफ रही हो, ये सभी लोग उसी परंपरा के, जिसको बाद में कुछ हिंदूवादी ताकतों ने उसको कोशिश किया है कि हिंदुआइज करने की कोशिश किया, सब उनके 9वें अवतार और 10वें अवतार में मान लिया, अवतार ही को मानते, लेकिन मखली घोषाल तक किसी ने अवतार नहीं माना। और फिर उसी परंपरा को जो गुरु जी आगे बढ़ाते हैं कि जिसमें गुरु नानक देव भी हैं, गुरु जी भी हैं, संत कबीर जी भी हैं, और वाल्मीकि जी हैं, और इसमें सर्वज्ञ जी भी हैं। ये तमाम ऐसे मिडल पीरियड में भी ऐसे सोशल रिफॉर्मर आए हैं जो इस तरह के जो आइडल वर्शिप का लेकर के, और जो इस सोसाइटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश किया, उनको इक्वालिटी का एक वो उन्होंने दिया है पूरी तरह से एक अधिकार। और इसके बाद फिर जितने भी इस तरह के वो आ रहे हैं, अब थोड़ा सा मैं और भी, आपने सुना होगा चित्तौड़ के जो राजा थे, कौन थे, राजा कुंभा, पर पढ़ने की कोशिश किया जाए, हम सभी लोग रिसर्च
सो राजा कुंभा जो होते थे, और कुमार एमपी जो है, और जो है, और चित्तौड़ की रानी कौन थी? झाली। तो झाली तो शिव की पूजा करती थी ना, और शी वाज अट्रैक्टेड विद गुरु। आई कहां से बात? या मीराबाई है जो आई आ रही है उसमें कि वो कैसे अट्रैक्ट। तो झाली जो है उनके भजनों को, उनके जितने भी वो रहे हम उनको सुनती थी, और उसके बाद उनमें जो है आत्मनियंत्रित प्रतिभा, मानवता के प्रति नरम दिल, सामाजिकता, दयालु स्वभाव, जो कि हिंदुओं में तो नहीं था ये सब चीज। And perhaps these are the quality, or these were the philosophy given by propounded by Guruji, which attracted Jhali ji. और Jhali ji, she herself visited to Varanasi and met Guru, and she invited Guruji in Chittaur. और वहां पर जो एक गुरुजी का जो भी रिलीजियस सेरेमनी हुई, जो प्रवचन हुआ होगा, जो वो बोले होंगे, उस बोलने के बाद जो एक बहुत बड़ा कथन, सही हो सकता है, गलत हो, ये तो इट इज अ मैटर ऑफ टेस्टिंग द टाइम, आई एम यूजिंग द टाइम। और उसके बाद जो आयोजन जब खत्म हुआ, उसके बाद जो एक परंपरा चलती है कि लंगर की, आज हम कहेंगे भोज की, हम कहेंगे जो भी कहेंगे, जो चाहे। अब उस जब लंगर जो चला तो ब्राह्मणों ने रिफ्यूज कर दिया, हम इनके साथ तो खाना नहीं खाएंगे। Why possible? Everybody know the reason why they refuse to eat with these people. तो राजा ने क्या कहा, ये भी इंडस्ट्री में कन्विंस करने के लिए हो सकती, सही हो ना हो ये हो सकता है, ये एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट में मैं वो करता हूँ, इसमें जो आप जैसा समझता है। तो जब ये लोगों ने नहीं खाया, और उसके बाद फिर प्रेशर डाला गया, फिर उनके लोग मिले, पुरोहित लोग, पंडित जी लोग मिले होंगे, उन्होंने कहा ये तो अनर्थ, या अपने दरबार में इनको बुलाया और उनके साथ आप हमको खाना खाने के लिए कहा। तो गुरुजी ने क्या कहा, यहां पर जैसे मैं कलम जैसा रखा हुआ, हमारे हम लोग पानी में एक मूर्ति रखवाई, और पंडित जी को लगे मंत्रोच्चार पढ़ने, जितना उनके ज्ञान निकाल दिए, मूर्ति कहीं से कुछ नहीं हुई, खिसक नहीं रही। कहानी हो सकती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो लिखा मैं भी उसी को नरेट कर। तो मूर्ति टस से मस नहीं हो रही, ये तो सारे फेल हो गए। जब गुरुजी ने उस आध्यात्मिकता का जो उनके आध्यात्मिक वो था, उसको जब अप्लाई किया, तो पता चला कि वो मूर्ति धीरे 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 गुरुजी की तरफ आ गई। तब से वहां पर देख करके जितने लोग थे, most of the people, those opposed Guru Ravidas Guruji's deliberation, majority of them accepted Guruji as a leader. एक तो ये हो गया। अब मैं जब इसमें कहता हूं कि क्या नाम है, अब उसके बाद जो गुरुजी का एक जो आ रहा है, मोबाइल लाइट चला लेता हूँ, कोई बात नहीं, सब चलता है, अच्छी बात में सब होता रहता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है, जब गुरुजी का जो सत्संग हो रहा होने के बाद गुरुजी क्या बोलते हैं, संत और अनंत ही, अनंत ही मतलब परमेश्वर, संत और अनंत ही में कोई अंतर नहीं।
संत तुझी तनु संगति पान, सति गुरु ज्ञान जैसे जानई, संत देखा देवा देव, संत की संगति संत कथा रसु, संत प्रेम मझई जय देवा। ये गुरु जी का वहां एक तरह से इतना बड़ा एक डेलिब्रेशन हो रहा है। इस तरह की चीजें जब वो इस तरह की बातें करते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब उस जमाने में जो क्या नाम है मीरा जी का पीरियड रहा होगा 1516 के आसपास, 15 से आसपास वही रहा होगा। तो मीरा जी के जो पति राजभोज थे, थोड़ा कहीं मैं गलत हूं तो सभी लोग करेक्ट भी कर दिया करे, हो सकता मैं ही झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा। तो राजभोज की जो कुछ शादी के कुछ ही समय बाद उनकी डेथ, लड़ाई, अब वो सती हो गई। तो राजभोज को तो स्वर्ग तभी मिलेगा जब उनके साथ मरेगी, बिना मरे तो स्वर्ग मिलना नहीं है। तो उसके बाद जब उन्होंने उनकी जो है उस समय तक गुरु जी की फॉलोइंग, गुरु जी का जो है एक दायरा बहुत बढ़ गया था, और गुरु जी के ही प्रभाव में आकर के प्रभावित होकर के मीराबाई ने एक तरह से कहिए पूरी व्यवस्था के खिलाफ रिवोल्ट किया कि नहीं। अब गुरु जी तक वहां पर हम उस चीज को कहते हैं भाई, जब अकेले आदमी पैदा होता है तो अकेले मरता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और फिर मीरा ने अपने भजनों में भी लिखा, खोजत फिरूं भेद वा घर को, कोई न करत बखानी। मीरा जी वो अनटचेबल कास्ट से नहीं। संत दास मिले मोहि सतगुरु, दिनी सूरत सहदानी। मेरो मन लागो है सु, अब न रहूंगी अटकी, गुरु मिलिया रैदास जी दिनी ज्ञान न बुझी। मीरा जी, अब मैं कहता हूं कि जो तमाम संविधान में जो व्यवस्था की गई है, अब वो कोई भले कह दे कि हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ये इंग्लैंड से लिया है, और ये फ्रांस से लिया है, वो तो हो कहने में तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यही रहा होगा जब उस जमाने में गुरु जी कहते हैं सती प्रथा के अंत में, तो सती प्रथा तो कम से कम अनटचेबल कम्युनिटी में तो थी ही। उनके अंदर तो पति मरने के बाद भी शादी होती थी। तो हिंदुओं की परंपरा थी, भाई प्रथा थी 14वीं शताब्दी के अंत तक और 15वीं शताब्दी सोचिए। और उसके बाद तमाम उनके लिए एक्ट वैक्ट जितने भी बने होंगे, वो सब सारे 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 एक्ट बने, सारी चीजें बनती गई। और फिर मैं एक चीज कह के कोई अब पद्म जी के विक्रम देखते के बोल रहा हूँ ना, बंद करिए, तो इसलिए अब मुझे भी बस कहना खत्म करना। अब इस चीज को मैं दो एक चीजें कह के अपनी बात को यहाँ पर विराम करूँ तो ज्यादा बेहतर है, अच्छा लगेगा तो बहुत ज्यादा। और तमाम चीजें मैं जब पढ़ता हूँ, गुरु जी को समझने की कोशिश करता हूँ, मैं कह रहा हूँ 14वीं शताब्दी के अंत में, और तभी मैं कहता हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल तो उस समय ही शुरू हो गई, और जितने लोग आज तक हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू ऑल द रिसर्च स्कॉलर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन मेड by the scheduled caste community, to fix up, to find out the contribution made by untouchable social reformer and how they contributed to liberate the entire society. ये उनके लिए
हम आज ही से नहीं मानते। स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के समय से, और इसीलिए मैं जब पूछता हूं क्या कौन से शुद्ध आजादी मना रहे हैं, 78वीं आजादी मना रहे हैं, उससे पहले आजाद था क्या? और यह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है उस समय ट्राइबल सोसाइटी रही होगी, स्टेट फॉर्मेशन नहीं रहा। आई डू एग्री ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, मुझे भी पता है। लेकिन उस समय जो आपके सूरवीर जो आज निकल पड़े हैं कि देश में जो है विजन 2047, अरे गुरु जी तो विजन 2 था, इंडिया का विजन जो है 14वीं सेंचुरी के एंड में हो, वो ड्रीम देख लिया था, नहीं बल्कि विजन दिया था, भारत का विजन कैसा होना चाहिए बेगम पूरा। और आप लेके चल रहे हैं विजन 2024 इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और अपने विशेष तौर से छात्रों को जो इन्होंने बहुत बढ़िया इस तरह की चीजें जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम करने की कर रहे हैं, और इस सब चीजों में काफी अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह की गैदरिंग करते रहना चाहिए। और कहीं पर भी इस तरह की चीजों को देखिए, बार बार एक चीज मैं कहता हूँ, सभी के लिए कहता हूँ, वो मेरे पर भी लागू होती है कि सोशल रिफॉर्मर किसी भी अनटचेबल कम्युनिटी जो भी है, सोशल रिफॉर्मर की उसको कई बहुत सारी जिम्मेदारियां, और उनके कंट्रीब्यूशन को कभी भी एक सोसाइटी विशेष तक नहीं आंकना चाहिए। कभी भी, कबीर हो, रैदास हो, साधु हो, नानक हो, ये सब के सब उसी परंपरा निर्गुण भक्ति साथ। तो इसलिए जब मैं इस तरह की बात बोल रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि अब इस तरह की आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, किसी भी चोखा मेला हो गए या जो है जी हो गए, या गुरु रविदास जी हो गए, महर्षि वाल्मीकि जी हो गए, ये तमाम सोशल रिफॉर्मर आप स्टडी करिए, कंपैरेटिव एनालिसिस करिए, करके उनके कॉमन पॉइंट क्या है? लिबरेट द ह्यूमैनिटी, यही रहा होगा ना, कुछ लिबरेट द ह्यूमैनिटी and focus on precisely the most marginalized society, यही रहा होगा। तो कॉमनैलिटी पे आइए, उनके जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन सिचुएशन, और एक और स्टोरी जैसे जैसे कभी याद आ जाती है जोड़ ले रहा हूँ कि लोधी के समय गुरु जी को जेल में भी बंद कि देखते, और उस जेल में ये कोशिश हुई था, देखते रहिए आगे पीछे डेट पे हो सकती है, डेट पे तो बहुत सारे उस समय रहा है कि जब वो जेल में बंद किए गए तो चारों तरफ एक सपने में जैसे दिख रहा है कि गुरु जी उनके सामने, लोधी के अगल बगल चारों तरफ बुक, एक आध्यात्मवाद की देवी चल रहा था। और मैं इधर जाता हूँ, वो कौन सी जगह है, खुराल, वो सही गलत में मैं नहीं जानता। 12, 13, 14 अप्रैल को एक जगह वहां पर चरण छू गंगा के चित्तौड़गढ़ राजस्थान, वहां से उसी रास्ते से गुरु जी होते हुए हिमाचल की तरफ। तो जो वहां पर उस समय जो राजा वहां के लोकल रहे होंगे, तो उनको जो उन्होंने क्या किया, उनको एक रहा होगा पुरानी वही हवेली वाली टाइप की, तो जितनी टीम के साथ गुरु जी जा रहे थे सबको उनको बंद, और वो तो चारों तरफ जंगल था। और जब बंद किया तो यह जान करके फिर राजा ने उनको छुड़वाया कि वे जंगल में तो मार जाए। तो जब चलते जा रहे हैं गुरु जी ऐसे,
और चलते जा रहा, उसमें जाने के बाद राजा क्या कहता है कि देखता हूं तुम अब जिंदा कहां कैसे रहते हो, इन जंगलों में तो तुम तड़प तड़प के मर जाओ। तो गुरुजी ने एड़ी से जो छोटे उस पे जमीन पे मारी है, वहां से पानी निकला जिसका नाम है चरण छुबक। और कितना सही है कितना गलत हो साइंटिफिक मैटर है, तो मैटर ऑफ डिबेट, मैं उसमें नहीं जाता। जब भगवान यहाँ जो गंगा जमुना सरस्वती को कह देते तीसरी नदी निकली है गंगा जमुना जहाँ मिलती है, जबकि सरस्वती वहां इलाहाबाद हो गया, उसके बाद प्रयाग हो गया, सरस्वती वहां एजुकेशन के फील्ड को कहा है। लेकिन लोग तीसरी आंख से देख लेते हैं तो वो अकबर का किला है, किले के अंदर एक कुआं बना करके यही सरस्वती निकली। तो मिथ को मिथ से कहा, अगर मिथ है तो मिथ से कहा, और सच्चाई है तो सच्चाई से कहा। अब गुरुजी तीनों पर खड़े होता, जहां मिथ होगा वहां से भी करेंगे। और चरण सुगंधा का मैं खुद आई विटनेस रहा हूं, एक बार मैं गया भी। ये कोरोना काल के बाद सोचिए कि कम से कम मैं कहूं कि 50-60 हजार से कम तो नहीं। यह एक होती है कि मेरी फीलिंग है, मेरा गुरुजी के प्रति लगाव। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो है किसी एक ही जाति के लोग हैं जो आते, मैंने खुद वहां पर मैं रहा हूं, मैं बोला। और चरण सुगंधा का जो मैंने देखा हूं कि सर 4 बजे से लोग उनके इंतजार करने लगते हैं, वहां इतना ही पानी मिल जाए, उसी पानी को मैं ऊपर डाल करके स्नान करके फिर चले। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मैं देखा हूं कि 3-3 महीने के बच्चों को लेकर के औरतें आती हैं। इसको कहते हैं कि आपका कमिटमेंट गुरु जी के प्रति, या उस चीज को जो हमारी आस्था, हमारी भी कोई आस्था है, हमारी कोई आस्था वहां डुबकी लगाने के लिए थोड़ा हम नहीं गए तो राष्ट्र विरोधी हो। हम तो कभी नहीं जाते, हमें भी जानते, हमारी जहां आस्था हो हम आस्था में हम अड़ी। इसलिए हम बस यही कहूंगा कि सभी लोगों को जैसे जो समझ में आए, ये हमारी कमजोरी, हमारे एकेडमिशियन की कमजोरी, हमारे स्कॉलर्स की कमजोरी है कि हम तमाम गुरुओं को एक जगह इकट्ठा करके उनको हम लिपिबद्ध नहीं कर रहे हैं, हम भी खांचे में बैठे। हमारी कमजोरी, और उसी कमजोरी का फायदा ये लोग उठा लें। नहीं तो उस जमाने में 14वीं 15वीं शताब्दी में इतने बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं, और इतने बड़े बड़े गुरु जी के पास कोई इतनी बड़ी फौज तो नहीं, NSG तो नहीं थी भाई, गुरु फौज वाले तो नहीं रहे हो। लेकिन देखिए कि कमिटमेंट था कि समाज को जगाना, श्रमदान करके, जो उस समय कहते श्रवण, प्रकृति से अपने आप को जोड़ते थे, प्रकृति से जो भी चाहे, आज हम कहते हैं इन्वायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये सभी लोग प्रकृति से जुड़े, जितने भी जलवायु से लेकर के, हवा से लेकर के, फसल से लेकर के, इन सब चीजों की पूजा होती है। तो मेरे होश में मेरे सामने हुई है, खेत में जाकर के जब फसल तैयार हो जाती तो फसल की पूजा, पानी की पूजा होती थी, फसल की पूजा होती थी। ये सारी चीजें जो प्रकृति हो, आपके जीवनचर्या को, आपकी लाइफ को आगे संचालन कर, आगे बढ़। वहां कोई देवी देवता का वो कंसेप्ट नहीं था कि एक पत्थर डाल दिया, डाल के कह दिया ये हमारे भगवान, उस चीज पे उनका कोई वो नहीं। इसलिए सभी लोगों को एक बार बधाई, और सभी लोगों को इतना बढ़िया कार्यक्रम करने के लिए अच्छा सब लगा मुझे भी, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हम लोग मिलेंगे इस आयोजन के साथ, और बच्चे लोग उत्साहित होकर कि अगले भी हमारे जितने भी समाज सुधारक क्या वो हैं, सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। सभी लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कलीग प्रोफेसर SN प्रसाद जी का। मैं इसीलिए धन्यवाद स्पेशली मैं दे रहा हूँ दिल से कि इतने अपने परेशानियों के बावजूद, व्यक्तिगत मैं जानता हूँ सब चीजों को, उसमें से भी समय निकाल कर उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा। बच्चों ने कहा तो वह मेरी जिम्मेदारी बनती है,